एक चीज आप समझो, आप जब 2 लाख की कैपिटल लेकर आए ना, तो आप 1 लॉट के लिए तैयार थे। बैक ऑफ द माइंड आपके एक चीज थी कि ठीक है, मैं इतना लॉस झेल सकता हूँ एक पर्टिकुलर अमाउंट तक। हर आदमी के दिमाग में एक डिजिट सेट होती है, मैं आपको बताऊं, अनोइंगली अनोइंगली कुछ भी, लेकिन एक डिजिट सेट होती है हमेशा कि यहां तक मैं कंफर्टेबल हूं होने के लिए, आफ्टर हाँ दैट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। नहीं और वो हूँ हमको भी यस नहीं पता होती कि वो लिमिट क्या है। मैंने एक हाथ अपना आगे बढ़ाया, अब ये फुल पोटेंशियल पर है अभी अपने, क्या मैं इससे किसी को चोट पहुंचा सकता हूं? नहीं। नहीं ऐसे ही कंडीशन में रखूंगा तो नहीं पहुंचा सकता। अब अगर मुझे किसी को चोट पहुंचाना है तो मुझे इसको थोड़ा पीछे लेना होगा, 40-50 हाँ परसेंट तक। वो चीज होती है रिट्रेसमेंट। ठीक है, कि आपको अगर सही में ऊपर जाना है ना, तो रिट्रेसमेंट करते हुए ही चलना पड़ेगा, ये नियम है। और शुरुआत में उनको मिल नहीं पाता। हर आदमी के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि यार मुझे करना तो है ये चीज, इसका सॉल्यूशन निकालना तो है, लेकिन उसका तरीका उनके पास एक ही होता है कि या तो हिट एंड ट्रायल करके बैठे देखें। ठीक है, अब हिट एंड ट्रायल में भी उनको प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि हमको कोई बताने वाला नहीं होता कि ये सही भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं कर एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर ठीक यस है, यही उस पॉइंट के लिए ही मैंने ये चीज बनाई है। So actually, I am right now like I've completed my CFA level 2. I have ठीक a है। good knowledge of finance, and I had started trading. I think so back 2 years back. हम्म। And firstly, in the first, I'll tell you like in first 3 months, I'll explain my first 3 months. हम्म। So I started with 25,000 rupees capital. Directly went to options because I knew what are options and I knew everything about it. हम्म। Just that I didn't know the full knowledge. हम्म। So you can say मेरे को option Greeks नहीं पता थे. I just know what is option buying and what leverage do they give. I was okay with that. हम्म। So in my first 3 months from 25,000 I made 75,000 trading every day. ठीक है। Every day. Trading every day I made 75,000. So my capital was 1 lakh rupees in हम्म। first 3 months. हम्म। And so I was very pumped. I think so I should increase my risk and everything. So yeah, so after 3 months what happened was in next 5 days हम्म। I lost the whole 1 lakh rupees, and the major day was one day I lost around 60K executing I think so more than 80 trades that day in हम्म। frustration, revenge, 80 everything that ट्रेड्स इन अ सिंगल डे? in a single day 60,000 rupees I lost 60,000 rupees. ठीक है, तो I आपको remember. ब्रोकरेज भी बहुत ज्यादा लगी होगी उस पे फिर? So, like if I don't know if I'm allowed to, but if I show you my PNL today, so I am at break even right now, but it still shows me 1.8 lakh rupees loss because of my brokerage. I हाँ। have I have done a lot of mistakes in these 3 years. हम्म। I'm still doing mistakes. ऐसा ही नहीं कि I am trading. I've been profitable, हम्म। but the I'll say slowly journey after option buying. So I took a break that day. 60K loss. I was crying. I was overwhelmed. I stopped trading for 2 months. After 2 months, I started again with a small capital. I do a job. So when I get a little bit of what do you say margin money, like after all my expenses and everything which I have like kept for savings, so I use that. So I again started with 25,000, and after 25,000 1 month capital blown again. So after that, I could see that I am only on a losing streak. I don't know why. I know it's psychology because when my first 3 months, I was like, oh yeah, now I हाँ can हाँ, वो stop तो everything. फर्स्ट फेज होता है ना, वो तो पहला Yeah, पहला वाला yeah. सीन So होता है। I again lost 25,000. After that, I learned more. I learned more, and then I started with option selling. But what directional, basically credit spreads. Credit तब spreads. आपकी कैपिटल कितनी थी, कैपिटल साइज? So after that, I took capital from my dad. तो हाँ, तभी मैंने कुछ 2 लाख के आसपास लिया था. ये दो आपने लाख सीखने के बाद लिया? हाँ, सीखने के बाद 2 लाख का लिया था. ठीक है। So after 2 lakh, I started with credit spreads. मतलब क्या करता था? Suppose I have to go bullish. I used to sell at the money option and हम्म। दूर का option buy कर देता था. ठीक है। एकदम दूर का मतलब. And that time what was the leverage कि
वो टाइम पे ये रूल भी नहीं था कि आपको वो 1500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के अंदर आपको इतना ही स्प्रेड बना सकते हो, आप कितना ही बड़ा स्प्रेड बना सकते हो। तो एंड मैं क्या करता था, सपोज द ऑप्शन इज ट्रेडिंग, वीकली एक्सपायरी भी थी, तो ऑप्शन इज ट्रेडिंग एज 200 300, तो मैं वो ऑप्शन सेल करता था 17-18 रुपए या 50 रुपए, वो वैसे ऑप्शंस बाय करता था। सो ये आई लर्नड इट विद हेज। तो हेज करना स्टार्ट किया, अगेन आई वेंट प्रॉफिटेबल। आई मीन फर्स्ट 3 months आई वेंट प्रॉफिटेबल, नॉट मच प्रॉफिट, मतलब 2 लाख पे आई थिंक सो। फर्स्ट मंथ आई मेड अराउंड 14K, देन आई मेड अराउंड 15K, मतलब यही रेंज में। एंड थर्ड मंथ में भी आल्सो आई मेड 15। आई थॉट यार दिस इज गुड, मतलब आई थिंक सो आई एम टेकिंग अ हेज आल्सो। एंड आई, तो व्हाट आई डिड दैट, मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी, लाइक नॉट एक लॉट से वापस मैंने क्वांटिटी कर दी उसको 3 लॉट पे। सो 3 लॉट पे जब मैं ट्रेड करने लग गया, so again the first day, like when I decided that I'll increase the quantity, and first day I faced a loss of 27,000। बिल्कुल, ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं प्रशम, ये आपकी ही नहीं, हर एक ट्रेडर की कहानी यही है। क्योंकि मैं खुद 7 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बताऊं, और मैंने इस तरह के फेजेस तो एक नहीं कई सारे देखे हैं। और इस तरह के लोगों से जो मैं मिला हूं, क्योंकि हमारी तो कम्युनिटी भी है और भी ट्रेडर्स से मिलते रहते हैं, सारी चीजें, हर एक आदमी की यही कहानी। उसका रीजन है, क्योंकि मार्केट जो है ना, वो आपने हमेशा सुना होगा कि साइकोलॉजी पे वर्क करता है। हाँ, मार्केट का तरीका ही काम करने का यही है कि जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो कर रहे हो और आपके जो रूल्स हैं आपने उसको पूरी तरह से फॉलो किया, आपने एक अच्छा खासा ठीक खासा रिटर्न बनाया जिससे आप सेटिस्फाइड हो, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस जो है वो एक बुरी चीज भी है इस बाजार में, है ना। क्योंकि जब आप काम कर रहे हो उस समय पर अगर आपको एक लेवल से ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए अपनी एक पर्टिकुलर सेटअप पे, स्ट्रेटजी पे, काम करने के तरीके पे, कुछ भी कह लो आप उसको, तो वो चीज हमारे लिए खराब हो जाती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि हम फिर उस पर अंधाधुंध रिस्क लेने लग जाते हैं। हमने जो अब तक कमाया है उससे, उसमें हम ये नहीं देखते कि हमने कमाया इसलिए है क्योंकि हम यहां से फ्री थे। हमको ये पता था कि हेजिंग कर रखे हैं और उसके बाद भी स्टॉप लॉस लगा के रखे हैं, सारी चीजें एग्जैक्टली अपनी जगह पर हैं, तब हमने वो चीज कमाई है। लेकिन आफ्टर दैट जब क्वांटिटी बढ़ती है तो हम पहली बात तो उस चीज के लिए तैयार नहीं होते कि अब जो हो। एक चीज आप समझो, आप जब 2 लाख की कैपिटल लेकर आए ना, तो आप एक लॉट के लिए तैयार थे। बैक ऑफ द माइंड आपके एक चीज थी कि ठीक है, मैं इतना लॉस झेल सकता हूँ एक पर्टिकुलर अमाउंट तक। हर आदमी के दिमाग में एक डिजिट सेट होती है, मैं आपको बताऊं, नोइंगली अनोइंगली कुछ भी, लेकिन एक डिजिट सेट होती है हमेशा कि यहां तक मैं कंफर्टेबल हूं होने के लिए, आफ्टर दैट मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। और वो हमको भी नहीं पता होती कि वो लिमिट क्या है। अब क्या है कि वो एक्सपीरियंस के साथ साथ, साइज के साथ साथ बढ़ती चली जाती है वो लिमिट हमारी, ठीक है। आपने जो किया वही सेम मैंने भी किया है और वही सेम और भी ट्रेडर्स ने किया है। क्योंकि क्या है कि मार्केट कॉन्फिडेंस देता है और फिर उसी कॉन्फिडेंस को तोड़ता है। क्योंकि क्या है, और ये मार्केट को कोई कुछ नहीं पड़ा कि हमारा आपका कॉन्फिडेंस तोड़े वो, ठीक है। मगर मार्केट के साइकिल्स यही है कि कोई भी चीज 3 बार वर्क करेगी तो 2 बार उसके बाद रुक जाएगी, और वो जब रुक रही है तो आपको भी रुकना है, उस जगह पर नहीं बढ़ानी। तो ये जो आपने बोला ना, इसमें मैं एक पॉइंट आपको बस नोट करवा देना चाहूंगा कि यहां पर आप जब भी इस तरह का कोई भी एक आपने कर लिया और आपका एक फेज आ गया जिसमें कि आपने पैसा कमा लिया कंसिस्टेंटली, उसके बाद रुक जाओ, अभी क्वांटिटी मत बढ़ाओ। कॉन्फिडेंस आ गया है, बहुत अच्छी बात है, पैसा अभी मत लगाओ और ज्यादा, अभी उस चीज को चलने दो। जब आपने देख लिया कि एक ड्रॉडाउन आकर के और वापस से मैं एक वापस उस स्टेज तक आ गया जहां तक मैं पिछली बार आया था, यानी एक ड्रॉडाउन का वेट करो आप पहले, ठीक है। पैसा आने के बाद एक ड्रॉडाउन का वेट करो। किसी भी सिस्टम में एक ड्रॉडाउन होता है और उस ड्रॉडाउन फेज को निकालने के बाद इंसान अगर वहां पर पैसा डाले, जब उसने देख लिया कि हाँ ड्रॉडाउन निकल गया, अब मैं वापस से अपनी उस ब्रेक इवन तक आ गया जहां से मैं वापस ड्रॉडाउन के लिए नीचे आया था, ठीक है। यानी कि आपने मान लो, आपने कहा कि मैंने फर्स्ट मंथ में जो भी 25-28,000 बनाए, जो कि 40,000 आई थिंक है ना, 40,000, तो मतलब आपने 2-3 महीने में लगभग लगभग कुछ नहीं तो 60-70 हजार रुपए बना लिए 2 लाख रुपए से, जो कि एक अच्छा रिटर्न है। अगर आप साल का 70-80% कमा रहे हो किसी भी सेटअप से, किसी भी चीज से, तो वो एक अच्छा रिटर्न है, सेटिस्फाइंग रिटर्न है ट्रेडिंग से।
तो वहां पर अगर आपने उतना बना लिया, वेट करो कि कभी भी उस जगह पर नहीं डालना सौदा बहुत ज्यादा। ये ऐसे ही है जैसे एक स्टॉक की साइकिल चलती है कि हर आदमी जब वो टॉप के आसपास होता है तो वहां पर लेने की कोशिश करता है उस चीज को, है ना। वो ऐसे ही है, सेम हमारी भी जो यात्रा है वो स्टॉक की तरह ही चलती है कि वो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेस करेगा। अच्छा, रिट्रेस करता क्यों है? आपको पता है कोई भी चीज, स्टॉक हो या हम हो, रिट्रेसमेंट इसलिए होती है कि जो फोर्स है ना वो एक जब फुल पोटेंशियल पर पहुंच जाता है अपने, तो उसके बाद उसको जरूरत होती है कि हमको रिफ्यूल हो हम, और उसको थोड़ा सा ना पावर की जरूरत पड़ती है फिर से। क्योंकि एक मान लो एक चीज का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैंने एक हाथ अपना आगे बढ़ाया, अब ये फुल पोटेंशियल पर है अभी अपने, क्या मैं इससे किसी को चोट पहुंचा सकता हूं? नहीं। नहीं। ऐसे ही कंडीशन में रखूंगा तो नहीं पहुंचा सकता। अब अगर मुझे किसी को चोट पहुंचाना है तो मुझे इसको थोड़ा पीछे लेना होगा, 40-50% तक। वो चीज होती है रिट्रेसमेंट। ठीक है, कि आपको अगर सही में ऊपर जाना है ना, तो रिट्रेसमेंट करते हुए ही चलना पड़ेगा, ये नियम है। ठीक। अब ये चीज आप नोट कर लो कि जब भी एक अपसाइड आ जाए आपके प्रॉफिट्स में और आपके पोर्टफोलियो में, तो उसके बाद थमना है, ड्रॉडाउन का वेट करना है, खुद ड्रॉडाउन का वेट करना है। अब आप सोचो कि मैं क्या बता रहा हूं आपको, आप लॉस ले रहे हो, उसकी कला आनी चाहिए आपको। ठीक है, जब आप उतनी ही क्वांटिटी रखते ना, तो आपको उतना कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि आपने 27 जो गंवाए, वो 27 आपने इसलिए गंवाए क्योंकि 3 लॉट थे, है ना। अगर वही सेम एक लॉट होता तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ऑलरेडी 70 कमा चुके थे। 7-8 हजार रुपए का लॉस होता, आप आराम से सोते उसके बाद। लेकिन उसके बाद आपने जो लॉट बढ़ाया, उसकी वजह से आपको बिना मतलब की ओवर थिंकिंग, फिर सारी चीजें कि वही सेटअप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 महीने करके उसके बाद रह जाएगा, ऐसी वाली चीजें, ऐसी वाली फीलिंग नहीं आएगी उसके बाद, अगर आपने एक लॉट ही रखा और उसके बाद तब बढ़ाया जब वो चीज एक ड्रॉडाउन निकल गया वापस से। क्योंकि अब आप समझो कि अब आप उसके बाद फिर से उस फेज में आ गए, पैसा कमाने वाले फेज में। तो मार्केट में हमेशा काम करो हवा के साथ। हवा मतलब जैसे एक पतंग होती है ना, तो हम देखते हैं कि हवा किस साइड की है, उसी साइड में पतंग उड़ाते हैं। ठीक। अगर हम हवा के अपोजिट साइड में पतंग उड़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? गिर ही जाएगी। गिर ही जाएगी, पतंग का भी बुरा हाल हो जाएगा, हमारा भी बुरा हाल हो जाएगा, है ना। तो पतंग है हमारी कैपिटल, हमको कैपिटल को संभाल के रखना है, और जब हमारा फेज आए, हवा चल रही हो, जिस साइड में चल रही हो उस साइड में उड़ाना है, बस ये चीज है। तो आप ये समझ लो कि ड्रॉडाउन को वेट करना है, और ड्रॉडाउन के बाद उस चीज को वापस से एक, जो अपनी कैपिटल जो भी बढ़ानी है, एक बार बढ़ा के फिर रुक जाना है। एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम रखो अपना कि इतने टाइम तक मैं कैपिटल को नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है। आप जब उस चीज को एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बार बार होती है ना जब इंसान के अकाउंट में, तो वो रिटर्न नहीं आ पाता, जो कंसिस्टेंट रिटर्न आना चाहिए। जैसे मैं काम जब करता हूं तो मैं हमेशा एक चीज का ध्यान रखता हूं कि मेरा 6 महीने 8 महीने का मैं एक पीरियड रखता हूं कि इसके अंदर मैं कितना भी बड़ा प्रॉफिट आ जाए मैं कैपिटल नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, कितना भी बड़ा प्रॉफिट आ जाए, मतलब अगर मैं 4 लॉट से काम कर रहा हूं तो मैं 4 लॉट से ही काम करूंगा, भले मुझे 4 लॉट के और पैसे आ जाएं। ये चीज है। सर मैं एकदम आपकी कंप्लीट, इनफैक्ट आपके जो भी पोस्ट लिंक्डइन पे द वे आपने आपके ट्रेड एक्सप्लेन किए, आई रियली लव्ड इट। मैं आपको एक शेयर करना चाहूंगा। द डे वी आई यू रिमेंबर वी हैड अ चैट ऑन हाँ लिंक्डइन, हाँ द नेक्स्ट डे मार्केट वाज अराउंड 24,500। उसके बाद वो जीएसटी रिफॉर्म्स का ये आया है, न्यूज आया है, जिसके कारण मार्केट वेंट टू 25,200, 300 पॉइंट्स का गैप अप खुला था उस दिन। हाँ आई टेल यू वन ब्यूटीफुल थिंग, मैंने आपकी एक चीज पढ़ी थी, आई वाज रीडिंग योर पोस्ट। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज कि आई स्टार्टेड, मैं कभी भी मार्केट ऑन हायर टाइम फ्रेम कभी एनालाइज नहीं करता था। एंड दैट डे व्हाट हैपेंड, दैट उस दिन थर्सडे था, आई डोंट रिमेंबर, बट 24,500 वाज अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल, वेरी गुड ऑन अ लाइक ओपन इंटरेस्ट भी देख लो, कुछ भी देख लो आप, उस दिन वो इतना अच्छा था। तो आई सॉ दैट मार्केट वाज डिपिंग, तो मैं कुछ ट्रेड नहीं कर रहा था, आई जस्ट लुक्ड एट द मार्केट दैट टाइम। एंड आई, इफ आई कैन शेयर इट, मैं ऐसे बता सकता हूँ कि उस थर्सडे को आफ्टर 2:30 PM market just made, literally on a 15 minutes time frame, made 15 green candles continuously, which showed that इधर कोई तो liquidity trap था उस दिन।
लिक्विडिटी ट्रैप होने के कारण वो लिक्विडिटी ट्रैप के बाद आई टेल यू उसके बाद मंडे को भी मार्केट वो फ्राइडे को मार्केट वापस गिरा कमिंग बैक टू जहाँ लोएस्ट गया था। उसके बाद मैंने बोला अभी भी मेरे को लगता है मार्केट बेरिश ही है। मैं बोला ये हुई नहीं, लिक्विडिटी ट्रैप था ही नहीं मतलब। मंडे को मार्केट अगेन वेंट टिल दैट लेवल जहाँ पे वो 15 कैंडल्स एंड हुई थी। मेरे को तभी एंड एक एनगल्फिंग कैंडल बनाई थी ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, एक बुलिश एनगल्फिंग बनाया था। मेरे को इधर लगा कि देयर इज सम अपॉर्चुनिटी दैट मार्केट विल रिवर्स फ्रॉम देम। आई विल बी ऑनेस्ट सर, मैंने एक लॉट से आई बॉट निफ्टी फ्यूचर बिकॉज इट्स अ हायर टाइम फ्रेम। मैं ऑप्शन बाइंग से रिस्क नहीं लेना चाहता ना ऑप्शन सेलिंग से रिस्क लेना चाहता था। आई डिसाइड आई टेक निफ्टी फ्यूचर, नेकेड फ्यूचर मतलब बाय किया सर। 225-200 तक आई होल्डेड इट, आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 45,000 रुपीज। आई वाज सिंगल सो डे में? हैप्पी। हाँ ये अभी रिसेंटली सर, आई थिंक सो इट्स ये इन अगस्त, ठीक ये है। अगस्त में या अगस्त मिड की बात है ये। अगस्त मिड में वो 300 पॉइंट का रिफॉर्म का जीएसटी रिफॉर्म का आया था। बट दैट डे आई अंडरस्टूड कि आई एम नॉट रॉन्ग विद माय एनालिसिस। आई कुड सी दैट ट्रैप, आई कुड सी एवरीथिंग वो बुलिश एंगल्फिंग, दिस इज शोइंग कि वो योर मार्केट इज ट्राइंग टू डू समथिंग। एंड वो 300 पॉइंट्स का गैप अप आया। तो दैट आई मेड अ ट्रेड 25,200 तक मैंने पूरा 150 गया था, मैंने 100 तक होल्ड किया था उस दिन और एक 80 पॉइंट का गैप अप आया नेक्स्ट डे और मैंने वो एग्जिट कर दिया। आई मेड अ गुड रिटर्न ऑफ 45,000 इन ओनली इन वन लॉट। ठीक है, तो मेरा मेरा वो पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया कि यार व्हाट एम आई डूइंग, मतलब डेली ट्रेड क्या मैं वो छोटा सा इवनिंग स्टार देखा, हाँ बाय कर लिया। बस यही चीज है कि लोगों का ना, मैं आपको बताता हूं, ये जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है आज की डेट में, आप चारों तरफ देख रहे हो, ट्रेडर्स भरे पड़े हैं, ठीक है, जो अपने आप को ट्रेडर्स बोलते हैं एक्चुअल में। आप ये देखोगे कि वो हमेशा किस चीज के चक्कर में पड़े हैं, मैं डेली कुछ ना कुछ कमा लूं। वो एक फैसिनेटिंग लाइफ देख रहे हैं किसी और की, ठीक है, कि सामने वाला बंदा रोज कमा रहा है, रोज कहीं घूम रहा है, और उसकी वजह से, और वो क्या दिखा रहा है सामने वाला जो घूम रहा है, वो दिखा रहा है कि मैं एक दिन में 40-50 पॉइंट ले रहा हूँ, 70 पॉइंट ले रहा हूँ। तो 40-50-70 तो मैंने बहुत बोल दिया, 10-10 20-20 पॉइंट का ट्रेड करते हैं लोग निफ्टी में, 40-50-30 पॉइंट का। आप समझो कि कुछ नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे ना, 0.2% होता है अगर आप 50 रुपए देखोगे निफ्टी में, तो 0.2%, ठीक है, आज की निफ्टी के हिसाब से कह रहा हूं। आप बड़ा पर्सपेक्टिव क्यों नहीं रखते, मैं कहता हूं, है ना। आप मतलब कोई भी, आपको नहीं कह रहा मैं, आप उन्हीं में से एक हो और मैं भी उन्हीं में से एक हूं। पहले मेरा भी काम करने का तरीका यही था, लेकिन जब मैंने देखा कि यार ये जो, मान लो मैं एक रिवर्सल ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, नॉर्मली लोग क्या होता है, ट्रेंड चल रहा है, एक रिवर्सल कैंडल बनी या एक रिवर्सल पैटर्न बना, अब उस पे लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं उस रिवर्सल पॉइंट को, ये सोच कर कि ये अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी ये है कि वो जब वापस एक बार अगर मान लो करेक्ट कर जाता है, तो उस ट्रेंड को फिर से आप प्ले करो, जो ट्रेंड चल रहा है ऑलरेडी, तब बड़ा पैसा बनेगा। ठीक है, पैसा रिट्रेसमेंट को प्ले करके नहीं, पैसा ट्रेंड को प्ले करके बनेगा। ठीक है, आप उस पॉइंट पे होने चाहिए जहां रिट्रेसमेंट खत्म हो रहा है। ठीक, मतलब आप समझो कि एक बड़ा चाल को आप जब देखने की कोशिश करते हो और उसको कैप्चर करने की, मेरा काम करने का तरीका ही यही है। मैं आपको बताऊं, मैं डेरिवेटिव्स में ट्रेड करता हूं, इंडेक्स डेरिवेटिव्स में, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी फ्यूचर्स में। और मैं जो भी टारगेट्स लेता हूं, बड़े ही लेता हूं। मतलब मेरा 600-800 पॉइंट के नीचे मैं कोई भी इस तरह का टारगेट लेना पसंद नहीं करता निफ्टी में। 600-800 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट, उसके ऊपर जितना जा सके। आप समझो अप्रैल की भी एक पूरा का पूरा मूव आया, ठीक है, अप्रैल में आया था, आपको याद होगा, 1700 पॉइंट का मूव सीधे सीधे चाल में हुआ था। ठीक है, उसके पहले मार्च में एक मूव, मार्च में नहीं, आई थिंक अप्रैल में ही शुरू हुआ था, जो कि 7 अप्रैल को खत्म हो गया था, एक मूव नीचे का। लगभग 1500 पॉइंट मार्केट टूटी थी, 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट तो एक दिन में टूट गई थी। आपको याद होगा, गैप डाउन खुला था, और वो उस दिन कुछ टैरिफ्स वगैरह का सीन था। उस दिन मार्केट 1200 पॉइंट गैप डाउन खुली, मैं शॉर्ट में बैठा हुआ था, लगभग 1500 पॉइंट का शॉर्ट था मेरा, पता 1500 पॉइंट मैंने उस दिन खाए थे और इमीडिएटली बुक कर दिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब भी इतना बड़ा गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है, तो वो सस्टेन नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि बिकॉज ऑफ मीन डेविएशन, मीन रिवर्जन, ये सारी चीजें होती हैं। और
वहां पर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा उतनी देर तक, ठीक है। तो वहां पर हमने बुक किया, लेकिन मेरा जो थ्योरी है काम करने का वो यही है कि आप पहला तो बड़ा सोचो और फिर बड़े राइड करने के लिए अपना माइंडसेट उस तरह का रखो, ठीक है, कि मुझे बड़ा राइड करना है, तभी आप बड़ा पैसा कमा पाओगे। आप हम्म 100 पॉइंट का अगर सोच के चल रहे हो तो आप 70-80 पॉइंट से ज्यादा नहीं ले सकते मार्केट से, ठीक है। हम्म मार्केट में जो भी रैली आ रही है, बड़ा खेलने का सोचो, क्योंकि मैंने जब इंट्राडे में करता था अपने पहले 2-3 साल में, उस समय पर क्या होता था, मेरे को इंट्राडे करना बहुत पसंद था और मेरे पास सेटअप्स भी थे, काफी अच्छा काम भी करता था, मैं कर लेता था मतलब ठीक ठाक सा। लेकिन क्या है कि उसमें दो चीजें नहीं थी। एक तो मैं उसमें जो गैप अप गैप डाउन के बड़े मूव्स होते हैं, आप देखोगे ना इंट्राडे में कोई भी स्टॉक अगर आप लेते हो या इंडेक्स भी, जब भी कोई बड़ी चाल बड़ा ट्रेंड बनना शुरू होगा ना मार्केट में, तो उस समय पर आप देखोगे कि बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन होना शुरू हो जाएंगे हम्म उस साइड में, ट्रेंड की साइड में। अभी आप पिछले 3 दिन से भी देख रहे होगे कि मार्केट में गैप अप होता है, खड़ा हो जाता है, इंट्राडे में हम्म कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ओवरनाइट चल रहा है कि हम्म गैप अप खुल रहा है, खड़ा हो जा रहा है, फिर गैप अप खुल रहा है, खड़ा हो जा रहा है, ऐसा सा सीन बन जाता है। तो उन चीजों को ट्रेड करने के लिए अगर आपको बड़ा मोमेंटम ट्रेड करना है तो आपको इंट्राडे से हटकर सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। है ना। मैं इंट्राडे से स्विंग पे आया ही इसीलिए, क्योंकि उसमें मैं कम से कम बड़े जो स्विंग्स होते हैं उनको मैं प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। हम्म। उसको आप बिना ओवरनाइट प्ले किए नहीं कर सकते हो काम उसमें। सर तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपको, राइट नाउ आई कैन से आई एम स्टिल अ ब्रेक इवन ट्रेडर, मतलब अभी अभी तो पहले तो लॉसेस जो हुए वो हुए, बट अभी मेरे में आई नो, मेरे को पता है कि ये साइकोलॉजिकल लेवल है, इधर तो मेरे को छोड़ना ही है स्ट्रेट, तो लॉस हो प्रॉफिट हो मैं वो बुक कर लेता हूँ। तो बिल्कुल। इसके कारण द बेस्ट पार्ट इसके मैं ब्रेक इवन तक तो पहुंच गया हूँ, तो मतलब कुछ नहीं है तो ब्रेक इवन आ जाता है। तो माय अगस्त मंथ वाज वेरी ब्यूटीफुल, वन ऑफ द बेस्ट मंथ हुआ है मेरा। मेरा सितंबर भी अभी इट इज प्रॉफिटेबल, बट आज ही एक गंदा ट्रेड हुआ। आई एम इनटू इंट्राडे ओनली राइट नाउ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्या बोलते हैं मैं स्विंग हो चुका है, बट आई एम इनटू कि मैं इंट्राडे ही कर रहा हूँ, थोड़े थोड़े इंट्राडे मूव्स, बट आई वांट टू मूव इट, आई विल बी ऑनेस्ट, मेरे को इंट्राडे से हटना है नाउ। आई प्लानिंग दैट आई वांट टू बी अ स्विंग ट्रेडर आपको आई मीन। एक क्वेश्चन मैं इसमें करना चाहूंगा, आपको इंट्राडे से क्यों हटना है? सर मेरा पॉइंट ये है कि आई थिंक सो, मैं हर छोटे, मैं आपको एक बेसिक बोल देता हूँ कि मार्केट थोड़ा ऊपर ले, सपोज गैप अप खुला, मार्केट एकदम स्टार्टिंग में 3-4 कैंडल बड़ी बड़ी बना दी अप साइड पे, मैं आई एम लुकिंग ओनली फॉर रिवर्सल ट्रेड। मैं उधर का सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं हाँ ऊपर ले ठीक है। जा रहा हूँ, मैं उधर सोच ही नहीं सकता कि मेरे पास थोड़ा कंसोलिडेशन आ गया, नहीं इधर शॉर्ट ही करना है, एक आधा कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गया, हाँ मिल गया, ये दिस इज द ट्रेड, स्टॉप लॉस डन, एंड वो स्टॉप लॉस फॉलो ही नहीं होता सर उसके बाद हाँ ऑनेस्टली। तो मैं आई एम नॉट रेडी फॉर इंट्राडे, आई फील, मेरे को लगता है, आई फील दैट अगस्त में जो मैंने ट्रेड किया, मेरा माइंडसेट भी वो बोल रहा था, आई सॉ ड्रॉ डाउन, मैंने तब भी ड्रॉ डाउन देखा 5-7 हजार का, बट जब मैंने 7,000 का लॉस देखा उसमें, मैंने बोला नहीं यार ये ट्रेड जाएगा, बिकॉज ये जो मूवमेंट बनाया इन्होंने, दिस मूवमेंट इज नॉट ऑर्डिनरी, दिस इज समथिंग रेयर मूवमेंट, एंड द प्राइस इज सेइंग, द प्राइस इज सेइंग द स्टोरी कि एक लिक्विडिटी ट्रैप के बाद मार्केट इज अगेन ट्राइंग टू शो कि इधर बायर्स है। तो वो एक माइंडसेट ही बन गया कि मेरे को हायर टाइम फ्रेम फॉलो करना है, तो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से वो, और इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रेड व्हिच वाज एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली, टारगेट वाज आल्सो बुक प्रॉपर्ली। तो मेरे को लगता है आई एम नॉट मेड फॉर इंट्राडे, आई फील सर कि हम्म आपको क्या मतलब, तो मेरे को आई मेरा मेरा क्वेश्चन है दैट इफ यू कैन हेल्प मी शोइंग अ रोड मैप, आप ऐसे समझो कि मैं एक बिगनर हूँ, मेरे पास कोई कैपिटल नहीं है, एंड इफ आई वांट टू स्टार्ट ट्रेडिंग, मैं आई एम वेरी पैशनेट सर, ऐसे तो मैं ट्रेडिंग के लिए बहुत पैशनेट हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं चीजें कर, नॉट ओनली इन मार्केट, लाइव मार्केट के अलावा आई ट्राई बैक टेस्टिंग आल्सो माय स्ट्रेटजी। तो मेरा पॉइंट ये कि आप व्हाट शुड बी माय रोड मैप, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, और इतनी लोनली जर्नी है सर कि मेरे को पता ही नहीं कि मैं किसको पूछूं ये सब चीजों के बारे में, एंड आई डोंट वांट बिल्कुल। टू टॉक अबाउट। एक्चुअली मैंने आपको बताऊं, मैं स्टार्ट ही इस पूरे के पूरे उसको प्रोग्राम को इसीलिए किया, आज ही स्टार्ट किया है मैंने, आप मेरे दूसरे कंटेस्टेंट हो जो कि आए हो, ठीक है। अच्छा और अभी इसके पहले एक थे सज्जन थे, उनसे बात हो रही थी मेरी, तो काफी जेंटलमैन थे। वो भी मतलब इस तरह की बहुत सारी उन्होंने तो मतलब एक पूरा का पूरा ऐप डिजाइन करके रखा था और सारी चीजें कि हमको बैक टेस्टिंग करने के लिए जो चीजें जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें थी। उन्होंने भी बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस पूछे आपकी तरह ही। आप देखो, आप जिस चीज में अभी फंसे हुए हो ना, यहाँ हर एक ट्रेडर आकर फंसता है, जो भी, क्योंकि देखो इंट्राडे से हर आदमी स्टार्ट करता है और करना भी चाहिए। उसका रीजन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि शुरुआती दिनों में इंट्राडे करना इसलिए जरूरी है
क्योंकि जो गलतियां होती हैं वो बहुत जल्दी पकड़ में आती हैं उससे। अगर आप स्विंग कर रहे हो, पोजिशनल कर रहे हो ना, तो 2-2 3-3 महीने के ट्रेड्स आप अगर एक एक ले रहे हो, मान लो 2 हफ्ते का ट्रेड आपने एक ले लिया, तो आपको एक गलती में सीखने में, मतलब एक ट्रेड में तो आप सीख नहीं जाओगे, एक हम्म गलती से सीखने में 3-4 महीने 5 महीने लग जाएंगे, हम्म समझ रहे हो। और इंट्राडे करते हो तो वही चीज आपका 4-5 दिन में, एक हफ्ते में कम से कम एक गलती आपके पकड़ में आ जाएगी। और गलती पकड़ में आ गई तो धीरे धीरे उसको आप काट लोगे, ठीक है, हम्म पहली चीज। दूसरी बात, आप जो इंट्राडे से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो स्विंग की तरफ, ठीक है, उसका एक, मैंने आपसे क्यों पूछा कि आप इंट्राडे क्यों छोड़ना चाहते हो, क्योंकि आपके पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रीजन होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रांग रीजन होना चाहिए। क्योंकि हम जब कोई भी डिसीजन ले लेते हैं ना, तो उसमें, उस डिसीजन के पीछे कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि आपको ये बताए कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया था, और आपको इस पे टिकवा, मतलब टिके रहो आप, ताकि जब इसमें, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगी ना, तो आपको फिर यही चीज दिमाग में आएगी कि यार करता तो था अच्छा इंट्राडे ट्रेड, क्यों आ गया यहाँ पे, इतना बोरिंग मार्केट चल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा मार्केट, क्योंकि होगा नहीं। 4 महीने से 5 महीने से निफ्टी एक जगह खड़ा है, कहीं जा ही नहीं रहा। अब देखो कहाँ गया है निफ्टी, 4 महीने से निफ्टी कहीं नहीं गया, 5 महीने से, ठीक है, एक रेंज में बढ़ा हुआ है, 1000-1500 पॉइंट की एक रेंज बनाई है, उसमें भी इतनी वॉलेटिलिटी कि आप उसमें कुछ कमा नहीं सकते, ठीक है। तो आपके लिए ना, अगर आप स्विंग में आना चाह रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक रीजन होना चाहिए, और वो रीजन मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। वो रीजन, पहला रीजन तो ये होना चाहिए कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। ट्रेडिंग जितनी बड़े टाइम फ्रेम की करोगे उतना सुखी रहोगे, ठीक। अभी आप कितने ट्रेड्स डालते हो दिन भर में? सर, एक से दो मैक्स। 1 से 2, दो तो बहुत रेयर हो गए लेकिन अभी। उसमें भी स्क्रीन टाइम आपका फुल होगा। सर, मैं एक्चुअली मेरा जॉब रहता है लाइक, तो मैं हाँ, एक्चुअली एक फाइनेंशियल कंटेंट राइटर भी हूँ। मैं ठीक है, ग्रो के लिए करता हूँ, आई मीन ग्रो मेरा क्लाइंट है, तो मैं ठीक उनके है, लिए लीड राइटर हूँ। तो मेरा जॉब रहता है, सो माई मेनली 9:15 to 11:30 के बीच में आई लुक एट द मार्केट्स। बट देन ऑल्सो आफ्टर 11:30 अगर मेरी एक आधी मीटिंग आ जाती है, तो एक आधे 1 घंटे की मीटिंग रहती है, देन आई अगेन स्टार्ट लुकिंग एट द मार्केट्स। तो एक्टिवली तो मैं मार्केट्स देख रहा हूँ, द प्रॉब्लम इज नॉट। और वैसे भी ये आपने ये वीक देखा रहेगा, क्या ही मूवमेंट आया हम्म, है, एंड कुछ मूवमेंट ही नहीं है। एंड उसमें आज मेरा साइकोलॉजी मानता ही नहीं है सर कि अभी ऐसे कि अब आज 2-3 दिन ट्रेड नहीं हुआ तो फोर्थ डे पे कोई भी एक पैटर्न पे मैं ट्रेड करूंगा, कोई भी, मतलब वो मेरा डिसिप्लिन नहीं है सर। आई आई अंडरस्टैंड कि मेरा डिसिप्लिन नहीं है। आई हैव टू मेक द डिसिप्लिन, एक ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा, आई नीड टू नो व्हाट आई ट्रेड। मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है सर, बट वो स्ट्रैटेजी में भी मैं बहुत ट्वीक करता हूँ, मतलब वो डिसिप्लिन से फॉलो नहीं करता। मेरे पास है मेरी खुद की स्ट्रैटेजी सर। मैं एक फिबोनाची यूज करता हूँ ऑन बैंक निफ्टी, एंड इट वर्क्स ब्यूटीफुली ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, मेरे को ऐसे लगता है। बट अगेन आई एम नॉट डिसिप्लिन। मेरे को वो, मैंने डिसाइड किया था अगर 0.5 टू 0.618 का जोन से वो मार्क करके वो उसके आसपास रहेगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा। मैं कभी उसके 0th लेवल पे ट्रेड कर लूंगा, 1 लेवल पे ट्रेड करूंगा। तो डिसिप्लिन नहीं है बेसिकली। तो बाकी, एंड रिगार्डिंग थोड़े प्राइस एक्शन सीखना चाहता हूँ, तो मेरे को प्राइस एक्शन थोड़ी बहुत आती है, बट ज्यादा नहीं आती। आई एम नॉट, मैं पूरा ऐसे ट्रेन नहीं हूँ इन प्राइस एक्शन। बट आई वांट टू नो कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन वर्क ऑन राइट नाउ, कि आप बताओ कि मैं क्या करना चाहिए मेरे को अभी। देखो, पहली बात, अगर आप स्विंग करना चाहते हो या किसी भी तरह की ट्रेड करना चाहते हो, इंट्राडे स्विंग कुछ भी, हम्म तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि उसमें आपको ना एक प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। एट द एंड आप जाकर के यही देखोगे कि बिना प्रोसेस के कोई रिटर्न नहीं बनता, ठीक हम्म है। आज आपने बना लिया, 1-2 महीने 4 महीने बना लिया, 5वें महीने में गंवा दोगे। प्रोसेस बहुत जरूरी है, उसका रीजन है, मैंने आपको पहले भी, इसके पहले बताया कि आप जब काम करते हो किसी भी प्रोसेस से, तो उसमें फेजेस होते हैं। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हो तो डिसिप्लिन हिल जाएगा। और डिसिप्लिन क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए नहीं बना है, आपको बताऊं। अब इसका एक एग्जांपल समझो आप, कि मार्केट्स लगातार अपने आप को चेंज करती रहती हैं, ठीक है, हम्म कंटिन्यूअसली ये चेंजिंग रहता है इसका बिहेवियर, ठीक। और हमारा बिहेवियर ये है कि हम जब किसी एक पर्टिकुलर, मान लो एक इंसान है, आपने किसी एक इंसान के लिए एक व्यू बना लिया कि ये लड़का बहुत अच्छा है, या ये लड़की बहुत अच्छी है, या ये लड़का बहुत गंदा है, बहुत हम्म बेकार है, इससे ये बेकार है, एकदम खत्म है। हम्म
तो अब आप उस व्यू को जल्दी चेंज नहीं कर पाते हो। एक बार व्यू बनने के बाद ना व्यू चेंज नहीं हो पाता, हमारा ब्रेन नहीं कर पाता, उस तरह की डिजाइनिंग नहीं है हमारी। नहीं है। ठीक है, तो वो जो चीज है वो हमको रोकती है, और हमारा जो नेचर है माइंड का, जो तरीका है काम करने का, वो ट्रेडिंग के अपोजिट है। ठीक, पहली चीज। तो इसके लिए हमको जरूरी होता है कि हम एक प्रोसेस में अपने आप को बांधें, ताकि उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम उस ब्रेन को अपने जो है उसकी जो कमियां हैं उसको खत्म कर पाए। ठीक, पहली चीज डिसिप्लिन को फॉलो करने का मतलब ये होता है, मैं आपको पहली चीज ये बताई कि डिसिप्लिन इसलिए फॉलो करना है ताकि ब्रेन को जो है वो बहुत ज्यादा छूट ना मिले अपनी चलाने की। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि जब आप काम कर रहे हो ना, तो प्राइस एक्शन सीखना भी इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल्स भी सीखना इम्पोर्टेंट है, मगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज है कि आप किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करो, उसमें आपका जो प्रोसेस है वो बनाने का एक ही तरीका होना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करो सही तरीके से। ठीक, और साथ में प्रोबेबिलिटीज का यूज करो अपनी ट्रेडिंग में। कैसे यूज होता है, प्रोबेबिलिटीज का यूज करोगे कैसे, इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? मैं प्रोबेबिलिटीज मतलब मैं वही समझता हूँ कि अगर मार्केट इन अ हायर टाइम पे सपोज अप ट्रेंड में है, देन व्हाई डू यू वांट टू प्लान अ रिवर्सल, थोड़ा नीचे आने दो, अगर आपको नीचे वो से तो चीजें रिवर्सल है ही दिख रहा हैं, है। वो चीजें हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन एक चीज होती है कि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम करना कब शुरू करती है ना? तो ये चीज तब होती है जब आप काम करना शुरू करते हो एक सीरीज ऑफ ट्रेड्स को देख करके, ना कि एक इंडिविजुअल ट्रेड को देख करके। ठीक, आप जब भी कोई एक इंडिविजुअल ट्रेड को देख रहे हो तो उसको आपको ये नहीं समझना कि सोचना कि इसमें मुझे प्रॉफिट आएगा या लॉस होगा। हम्म। आपको एक सीरीज ऑफ ट्रेड देखना है। कि पहली बात, लॉन्ग टर्म अप्रोच होनी चाहिए। भले मैं इंट्राडे कर रहा हूं, भले मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं, भले मैं स्विंग कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, मुझे साल भर का देखना है कि मैं एनुअली क्या रिटर्न निकाल पा रहा हूँ मार्केट से, और क्या घर ले जा पा रहा हूँ रिटर्न निकाल के। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप साल भर का देखोगे तो साल भर में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि अगर मैं 100 ट्रेड्स कर रहा हूं, तो 100 में से अगर मेरे 70 गलत हो रहे हैं और 30 ही सही हो रहे हैं, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड इतना होना चाहिए कि मैं उस 30 का पैसा तो कमा ही लूं, उससे 2 गुना 3 गुना पैसा और ज्यादा कमा लूं। ठीक, पहली चीज। मतलब अब ये रिस्क टू रिवॉर्ड की चीज है। ठीक, प्रोबेबिलिटीज कब काम करना शुरू करेंगी, जब आप ट्रेड्स को, नंबर ऑफ ट्रेड्स को बढ़ाओगे अपने। लेकिन बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि डेली आपको ट्रेड करना है या जबरदस्ती ट्रेड करना है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि अप्रोच को बढ़ाना है। ठीक, मुझे ये नहीं देखना कि इस ट्रेड में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, मुझे ये देखना है कि आने वाले 100 ट्रेड्स में क्या हुआ। ठीक, अब देखो, आप जब ये देखना शुरू करते हो, कोई भी एक आप सेटअप उठाओगे ना, तो उस सेटअप को आप जब बैक टेस्ट करते हो, ठीक है, 20 ट्रेड्स में मान लो आपने बैक टेस्ट किया, दुनिया भर का कोई भी सेटअप की बात कर रहा हूं मैं, और मैं बहुत ही डेटा बैक तरीके से ये बात बोल रहा हूँ। ठीक, मैंने खुद निफ्टी को 12 साल बैक टेस्ट किया है छोटे टाइम फ्रेम्स पर। छोटे का मतलब 30 मिनट से नीचे के टाइम फ्रेम्स पर 12 साल बैक टेस्टिंग की है मैनुअल, तब बोल रहा हूँ ये बात। आप जब भी किसी भी सेटअप को बैक टेस्ट करते हो, मान लो आपने 10-20 ट्रेड्स में कर लिया, 30-40 ट्रेड्स में कर लिया, तो आपकी एक्यूरेसी हो सकता है, आपका स्ट्राइक रेट 50, 60, 70, 80% तक आ जाए। ठीक है, 80% तक आ सकता है। लेकिन जब आप उसको 100 ट्रेड्स में बैक टेस्ट करोगे उसी सेम सेटअप को, तो वो जो एक्यूरेसी है आपकी, वो जो स्ट्राइक रेट है, वो उतर के चला आएगा 50 के नीचे। ठीक, 50% के नीचे आ जाएगा 100 ट्रेड्स में बैक टेस्ट करते ही। और जब आप उसको 1000 ट्रेड्स में बैक टेस्ट करोगे, तब वही सेम चीज आपकी 40% के नीचे उतर के चली जाएगी। तो ये मार्केट का नियम है, ये मार्केट का तरीका है काम करने का, कि उसमें आप कभी भी 30-40% से ज्यादा, 30-35% से ज्यादा आपको न तो सही होने की जरूरत है, और ना आपको आप सही हो सकते हो। ठीक है, तो जब मार्केट का नेचर ही यही है, तो हमको अपने आप को उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा। उसको सेट कैसे करोगे, रिस्क टू रिवॉर्ड को सेट करके, कि कम से कम 1:5, 1:7, 1:8 के ऊपर का होना चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक, पहली चीज। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए, आप जहां ले रहे हो बहुत पास होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। वैसे आपका होता भी होगा, अगर आप प्रॉफिटेबली और ब्रेक इवन पे हो, तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, बेसिक जो चीजें हैं, है ना?
तो मेरा एक्चुअली साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस होता है। मेरे को मैंने आपने वो फर्स्ट बात क्या बोली कि आप एक चीज तक कंफर्टेबल हो, उसके बाद नहीं हो कंफर्टेबल। हाँ तो मेरा पॉइंट यही है सर कि मेरा ये आपको इंट्राडे लेवल आई एम ओके विथ लूजिंग 35 टू 4,000 रुपीज, 3,500 टू 4,000 रुपीज। उसके बाद मैंने तो मेरा अभी 2 महीने मतलब ये जून जुलाई अगस्त ये 4 महीने हो गए। ये 4 महीने में मैंने 4 मंथ्स में अब तक जुलाई में लॉस था, जुलाई ये 3 प्रॉफिट हुए सितंबर तक, अभी तक तो सितंबर चल रहा है। तो ये तीनों प्रॉफिट मंथ्स में मेरे स्टॉप लॉस 4,000 4,500 के आसपास ही रहे। हम्म 4,500 के आसपास। जैसे मैंने आप वो जो एक बड़ा लॉन्ग इंट्राडे मूव लिया था उसमें मेरे को एक थोड़ा ज्यादा लॉस हुआ था, बट आई वाज वेरी ओके। मैंने कोई स्टॉप लॉस लगाया नहीं था, मैंने सिर्फ स्पॉट चार्ट पे लगाया था कि ये रेड कैंडल ये स्विंग लो के नीचे मैं बेच दूंगा, इसके ये फिक्स है। बट उसके बाद भी मेरे को स्विंग लो आया भी नहीं एंड मेरे को टारगेट हिट हो गया। नहीं तो मेरे स्टॉप लॉस साइकोलॉजिकली जो 4,000 के आसपास के अमाउंट्स रहते सर। हाँ देखो, बट बट आई सॉरी टू डिस्टर्ब ये बिल्कुल बिल्कुल। मेरा प्रॉब्लम ये है सर कि 4,000 के स्टॉप लॉस तो रहते हैं, बट मेरे टारगेट बहुत छोटे रहते हैं। फिर 4,000 का ये स्टॉप लॉस रख तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली, और ये पता है कब दूर होगी आपकी? ये ऐसे नहीं दूर होगी आपकी। पहली बात, जो आप स्टॉप लॉस को माइंड में रखते हो ना, तो माइंड में नहीं रखना आपको। ठीक, उसको आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये जगह पे निकलना है चार्ट के हिसाब से। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आपको ना अपनी कैपिटल को 100 ट्रेड्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं जब काम करता हूं, तो मैं अपनी कैपिटल को दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, जिसमें एक बैकअप कैपिटल होती है और एक वर्किंग कैपिटल होती है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में मैं करता क्या हूं कि उसको 100 ट्रेड्स में डिवाइड करता हूं, कि जो भी मतलब मैं वर्किंग कैपिटल लगा रहा हूं, उसके पीछे मेरी एक बैकअप कैपिटल रखी है जो ड्रॉडाउन के लिए है। ओके ठीक, क्योंकि अगर मैं मान लो मेरे पास आज 1 लाख रुपए है और मैं इक्विटी ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, इक्विटी में स्टॉक ट्रेड कर रहा हूँ। अब उसमें अगर मैंने पूरा 1 लाख लगा के ट्रेड कर लिया और वो चीज 50,000 आ गई, तो अब वापस 50,000 से 50,000 और बनाना, तो मतलब 100% का रिटर्न होना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए अगर मेरे पास दो मतलब मान लो 1 लाख रुपए ही हैं, तो मैंने उसको 50,000 रुपए कर दिया अपना वर्किंग कैपिटल और 50,000 रुपए कर दिया अपना बैकअप कैपिटल। अब क्या होगा? अब उस 50,000 को भी मैंने इस तरह से यूज किया कि ये जो 50,000 बैकअप में रखा है ना, इसमें मैं 100 ट्रेड्स, या 100 ट्रेड्स का मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, 100 ट्रेड्स करने की इतनी जरूरत नहीं है। आप ये कर सकते हो कि 20 ट्रेड्स, 25 ट्रेड्स, 30 ट्रेड्स आप पहले बैक टेस्ट करो चार्ट को अपने हिसाब से, जो भी आपका सेटअप है। बैक टेस्टिंग कम से कम होनी चाहिए, 3 साल की कम से कम होनी चाहिए, ताकि आपको पूरा उसका जो साइकिल है वो पता रहे। कम से कम एक साइकिल आप देख पाओ उस चीज की। साइकिल का मतलब समझ रहे हो? एक दो ड्रॉडाउन्स और एक दो बड़े फेजेस जो आपके प्रॉफिट वाले फेज हैं। ठीक है, वो दोनों आप देख सको, दो प्रॉफिट्स वाले फेज और दो ड्रॉडाउन्स, उसको कहते हैं हम साइकिल। ठीक, तो इसको आप अगर देख रखे रहोगे ना, तो आपके दिमाग में ये समझ रहेगी आपको इतनी, कि मेरा सेटअप जो है वो किस तरह से काम करता है, ड्रॉडाउन में किस तरह से काम करता है, और जब काम मेरे डायरेक्शन में होता है तो कैसे होता है। ठीक है, तो बैक टेस्टिंग करो, और बैक टेस्टिंग करने के बाद आप उस चीज में मैं अभी इसके पहले आपको क्या बता रहा था बैक टेस्टिंग के पहले? आप ये 2 साइकिल्स देखनी चाहिए आपको। हाँ हाँ, उसके पहले वो तो बैक टेस्टिंग का पार्ट हो गया। हाँ तो उसके पहले क्या बात कर रहे थे आप, 1 मिनट। सेटअप मेरे दिमाग से उतर गया बैक टेस्टिंग बोलते समय। ठीक है, तो अब इस ड्रॉडाउन की कैपिटल डिवाइड की बात कर रहे थे। हाँ कैपिटल डिवाइड की। ठीक है, तो कैपिटल डिवाइड आपके ने जो कर रखी है 50% की, उसमें आपको ये देखना है कि मेरे जो ड्रॉडाउन आ रहे हैं उसमें कितने ट्रेड्स गलत हो रहे हैं सीरीज में। ठीक, तो उस सीरीज से ज्यादा ट्रेड्स रख लो अपने। मान लो ओके 20 ट्रेड गलत हो रहे हैं सीरीज में, तो मतलब सीरीज में समझ रहे हो, कॉन्सेक्यूटिवली आपके लगभग लगभग 10-15 स्टॉप लॉसेस कट जा रहे हैं। और फिर भी आप सोचो कितना मैजिकल चीज है कि आप 10-15 लॉस करने के बाद भी ट्रेड कामली बैठे हुए हो कि ठीक है कोई बात नहीं, जब आएगा तो इन सब का पैसा एक साथ लेकर आएगा। ये होती है रियल ट्रेडिंग। और ये कर रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बिना किए आपको बोल रहा हूं। 10-10 स्टॉप लॉसेस, 15-15 मैं देता हूं खुद। ठीक, एक एक बार में। लेकिन जब पैसा आता है ना, मैंने आपको बताया ना कि जो अप्रैल की मूव थी,
जो मार्च की मूव थी, अब फरवरी की मूव थी, उन सबको लेने के बाद आपको ये एसएल्स बहुत छोटे लगेंगे, आपको जो 10-15 एसएल भी कट रहे हैं वो भी, ठीक है, उस तरह की अगर आप मूव खा पाते हो तो पहली बात, बड़े रिटर्न्स की सोचो, बड़े चालों को लेने की सोचो, क्योंकि वो इजी होता है, वो सिंपल होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इंट्राडे की चाल को लेने से ज्यादा सिंपल होता है स्विंग में काम करना, ठीक। Yes, 110% agree. दूसरी चीज, आपके पास टाइम की फ्रीडम होती है स्विंग करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम देना है। आपने अपना एक सिस्टम बनाया, सिस्टम पे जब भी आया ट्रेड डाला और उसके बाद रख दिया, स्टॉप लॉस हुआ स्टॉप लॉस लिया, और अगर आपकी साइड में चल गया तो उसको राइड करो। राइड का भी एक सिस्टम बनाना पड़ता है हमको ट्रेलिंग का, ठीक। हम जब उस कैपिटल को डिवाइड कर देंगे ना 30 ट्रेड्स में, आप समझो, तो अब अगर मान लो मैंने कहा कि एक इक्विटी में ट्रेड कर रहा हूं, 50,000 पूरा कभी लगेगा नहीं। जो हमने 50,000 वर्किंग कैपिटल में रखा है ना, वो 50,000 कभी नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं। जब आप 30 ट्रेड्स में डिवाइड कर दोगे इस बैकअप कैपिटल को, तो आप नहीं समझोगे मेरी बात को। सपोज कि हमको लॉस करना है पर ट्रेड 200 रुपए का, ठीक। 200 रुपए का लॉस करना है, और एक दिन में हम 1,000 रुपए तक का लॉस कर सकते हैं, 5 ट्रेड कर सकते हैं, ठीक, 5 ट्रेड्स। आप सोचो कि आपने अगर ये रख लिया कि 200 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 50,000 की कैपिटल पड़ी है पूरी, ठीक। अब 50,000 के कैपिटल में आपने अगर एक स्टॉक ले लिया टाटा मोटर्स, मान लो एग्जाम्पल के लिए, 600-700 रुपए का स्टॉक है। मार्जिन में आपको इंट्राडे में कितने का मिलता है? कुछ 600 का है तो 120 के आसपास का मिल जाएगा, 130 का, ठीक है। 150 मान लो, ठीक है। 150 अगर मानोगे तो उसके हिसाब से आपको 200 का एसएल देना है। अब उसका 1% से ज्यादा का एसएल आप इंट्राडे में लगाओगे नहीं। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस है उस चीज का, कि कोई भी स्टॉक कभी भी आप जब एसएल लगाते हो ना, तो उसमें आधे परसेंट 1% का तक का लगता है, ठीक है। चार्ट के हिसाब से देख के कह रहा हूं मैं, कि मान लो आपका एसएल आ रहा है 4 रुपए का, ठीक। तो 4 रुपए के हिसाब से आपको उतनी क्वांटिटी लेनी है जितने में 200 रुपए का हमारा एसएल हो जाए, ठीक। 4 रुपए का हिसाब से आपका कितना एसएल आया, आपकी कितनी क्वांटिटी आई एक्चुअल में? 50 क्वांटिटी। 50 क्वांटिटी टाटा मोटर की लेनी है, और एक लेने में 150 रुपए लग रहा है। कितना पैसा लगा? 50, सिर्फ और सिर्फ आप समझो कि कितना, 15-20 हजार रुपए लगा, है ना। मतलब 15,000 के ऊपर तो लगेगा ही नहीं कभी भी, 10,000 के अंदर निपट जाओगे आप। अगर आपके पास 20,000 से भी आप काम कर रहे हो, 25,000 से, उस वर्किंग कैपिटल में भी बात कर रहा हूं, वर्किंग कैपिटल निकाल लिया, इसका ये मतलब नहीं कि वर्किंग कैपिटल को पूरा यूज करना है ना। उसको भी हमको पूरा यूज नहीं करना, उतना ही यूज करना है जितना हम कंफर्टेबल है लूज करने में एक ट्रेड में, उसके हिसाब से डिवाइड करके, ठीक है। तो जब आप ये करोगे ना, तो आप देखोगे कि एक आपके मन में शांति बनी रहेगी, और जब शांति बनी रहेगी आराम से चीज को राइड कर पाओगे। राइडिंग में ना बहुत ज्यादा कामनेस की जरूरत होती है, कि आपको पता होना चाहिए। राइड आदमी क्यों नहीं कर पाता पता है? राइड इंसान इसलिए लंबा नहीं कर पाता किसी भी चीज को, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे वो स्विंग हो, क्योंकि उसको ये डर रहता है कि कहीं ये वापस से मेरा बाकी ट्रेड्स में जो इसने देखा है ना, उसका डर रहता है, बाकी ट्रेड्स की तरह ये भी वापस ना मुड़ जाए, अभी तो मेरे साइड में चल रहा है। लेकिन जब आपके पास एक सिस्टम होगा, आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में मैं एक अच्छा प्रॉफिट कमाने वाला हूं, क्योंकि जब मार्केट चल रहा है, तो जैसे मार्केट हर बार मैं सही नहीं हो सकता मार्केट में, वैसे हर बार गलत नहीं हो सकता। 30-35% मैं सही हो जाऊंगा, और 30-35% जब मैं सही हो जाऊंगा, तो जो मोमेंटम पूरा आ रहा है मैं उसको पूरे मोमेंटम को खा पा रहा हूं। अगर मैंने पूरा मोमेंटम खा लिया, और पूरे मोमेंटम को खाने का मतलब ये नहीं कि आपने बॉटम से लिया और टॉप पे बेचा, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ स्विंग जब हम करते हैं ना, स्विंग ट्रेडिंग या कोई भी एक किसी भी इस तरह की जो ढंग की ट्रेडिंग होती है, उसमें आपको नीचे का बीज छोड़ना है, ऊपर का बीज छोड़ना है, बीच का सिर्फ 60% खाना है। वो अगर आप खा पा रहे हो तो आपकी स्किल बहुत अच्छी है, ठीक। ये इस तरह का एक सिस्टम डिजाइन करो अगर आपको स्विंग करना है तो, ठीक है। और बैक टेस्टिंग करो, सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होती है, क्योंकि वो कन्विक्शन लाती है आपकी सेटअप पर, आपके एनालिसिस पर आपको, ठीक। सर हाँ, आई गॉट योर पॉइंट। अभी मेरा एक ये ऐसा सवाल था कि मेरे को लग रहा है कि मेरी स्ट्रैटेजी ना सर, मैं सिर्फ फिबोनाची यूज करता हूँ और ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ जो इंट्राडे बेसिस पे। क्या मेरे को कभी कभी मेरी स्ट्रैटेजी पे डाउट होता है, ऑनेस्टली झूठ नहीं बोलूंगा।
तो क्योंकि मेरे को और कुछ आता नहीं था वो टाइम पे, आई जस्ट यूज फिबोनाची ओपन इंटरेस्ट, मैंने बहुत चीजें पढ़ी पर मैंने कोई अप्लाई नहीं की। मैंने सुपर ट्रेंड पढ़ा, मैंने एडीएक्स इंडिकेटर पढ़ा, सब पढ़ा, बट मेरा पॉइंट ये है कि इफ आई वांट टू मेक अ स्ट्रैटेजी तो आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट मेकिंग अ स्ट्रैटेजी। मतलब मैं अभी आई डोंट नो कैसे कि आप करूँ वो ट्रेड, मतलब आप एक स्ट्रेटजी बनाओगे कैसे, आपको ये नहीं पता है। हाँ नहीं पता है मुझे ये। देखो मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ कर दूंगा इस चीज को, ठीक है। अगर आपको बहुत डिटेल्ड वे में देखना है, मैंने यूट्यूब पे अभी रिसेंटली 10 दिन पहले वीडियो डाला है, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल आपको पे। चैनल, आप मेरे को बाद में एक लिंक्डइन पे आपका चैनल मेरे को मैसेज कर देना। बिल्कुल मैं कर दूंगा। उस पे आप देखोगे ना, तो उसमें मैंने एग्जैक्टली एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके समझाया है कि सिस्टम को बिल्ड किया कैसे जाता है, ट्रेडिंग सिस्टम को कैसे बिल्ड किया जाता है, ठीक। इस चीज को जब आप देख लोगे, उस चीज को, वो लगभग 28-30 मिनट का वीडियो है, तो आपके ये पूरे कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे। छोटा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। देखो सिस्टम में ना हमको रिस्क टू रिवॉर्ड का ध्यान रखना होता है, ठीक है। प्राइस एक्शन जरूरी होता है जानना पूरी तरह से, ताकि प्राइस एक्शन जानने से ये होता है कि आपको प्रोबेबिलिटीज अपने साइड, अपने फेवर में वर्क करवाने में आसानी होती है। मैं वही चीज बताया हूं उसमें कि एक छोटी सी चीज भी आपका सेटअप बन सकती है अगर आप ठीक से काम करो तो, ठीक है। अगर मैंने जो सिस्टम उसमें बताया है ना, और अभी एक दो वीडियोस और भी बनाऊंगा मैं उस सीरीज में, क्योंकि क्या है कि एक वीडियो में उस चीज को कवर नहीं किया जा सकता। उसमें जब आप काम करते हो ना, तो एक सिस्टम जब आपके पास होता है, सिस्टम का मतलब ये नहीं कि आप प्राइस एक्शन के हिसाब से जो सिस्टम बनाते हो। सिस्टम का मतलब ये है कि आप आर मल्टीपल को फॉलो कर रहे हो। आर मल्टीपल आपको पता है, नहीं होता आपका? रिस्क टू रिवॉर्ड या हाँ। नहीं नहीं, रिस्क टू रिवॉर्ड का ही पार्ट होता है आर मल्टीपल। आर मल्टीपल का मतलब होता है कि आप एक ट्रेड में, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में कितने लूजिंग ट्रेड्स का पैसा निकाल पा रहे हो। ओ, यानी कि आपका जो एक ट्रेड है वो 10 ट्रेड्स का पैसा देकर जा रहा है अगर, तो आर मल्टीपल 10 होगा, R10, ठीक है। इसको कहते हैं हम आर मल्टीपल मार्केट में। और ऐसे ही एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी होती है, सारी चीजें एक्सप्लेन की है उसमें मैंने। वो एक पूरे इन तीनों चारों चीजों को जो कॉम्बिनेशन बनाकर जब आप यूज करते हो ना, एक सिस्टम को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, तब आपको देखो, कभी भी सिस्टम बनाने में ना दो पार्ट्स होते हैं, एक तो बिफोर एंट्री, एक आफ्टर एंट्री। जो लोग कहते हैं ना साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है 80% मार्केट में और 20% एग्जीक्यूशन, तो बिल्कुल सही बात है कि साइकोलॉजी 80%, लेकिन जो पैसा आता है ना रियल, वो एग्जीक्यूशन से आता है उस 20% के, ठीक है। उसको स्ट्रांग रखना पहली बात जरूरी है। दूसरी बात, ये जो साइकोलॉजी है आपकी, ये कब काम करती है? आफ्टर एंटर होने के बाद, ठीक है। एंट्री के बाद काम करती है, ठीक। एंट्री के पहले आपका एग्जीक्यूशन का सेटअप ही काम करेगा कि एग्जैक्टली मुझे ये पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूशन करना कहां पर, ठीक। साइकोलॉजी कब वर्क करेगी कि आप ट्रेल कितना कर पा रहे हो उस चीज को, क्योंकि ट्रेल तो आप तभी कर पाओगे जब यहां से आप स्ट्रांग रहोगे, कन्विक्शन रहेगा आपको अपनी जो भी आपका प्रोसेस है उस पर, ठीक है। तो आप जब किसी चीज को बिल्ड कर रहे हो, देखो कि प्राइस एक्शन में ऐसी कुछ चीजें हो रही हो जो कि हर बार, मान लो मुझे मोमेंटम ट्रेड करना है, ठीक है। एक एग्जांपल समझा देता हूं आपको। मोमेंटम ट्रेड करना है, मुझे ये देखना पड़ेगा प्राइस चार्ट्स पर कि हर मोमेंटम के पहले मैं ऐसी कौन सी चीज है जिसको कि मिस नहीं कर सकता। यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो प्राइस हर मोमेंटम के पहले कर ही रहा है, उसकी मजबूरी है करना, प्राइस करेगा ही करेगा, वो उसका बिहेवियर होना चाहिए। उस एक चीज को आपको नोट करना पड़ेगा। अगर एक भी ऐसी चीज आपको मिल गई जो कि किसी मोमेंटम के होने से पहले हो ही रही है, नो डाउट उसमें से मैंने आपको वही चीज बोली कि 35-40% आप सही निकलोगे, बाकी 60-70% गलत निकलोगे। लेकिन जब आप कमा रहे हो तो बहुत ज्यादा कमाओगे, क्योंकि आप पूरा मोमेंटम खाओगे। और जब आपको लॉस लगे तो आपको ऐसा सिस्टम बिल्ड करना है कि बहुत छोटा लॉस लगे, ठीक है। प्राइस एक्शन पे जब आप काम करते हो, प्राइस एक्शन में आपको ये देखना है कि मान लो जो भी एक पर्टिकुलर एरिया आ रहा है मेरा रिसेंट सपोर्ट का, अगर कोई चीज ऊपर चल रही है तो रिसेंट सपोर्ट का जो भी एरिया आ रहा है उसके आसपास लूं मैं कहीं भी, ताकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहे, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना। ये एक एग्जाम्पल था सिर्फ और सिर्फ। जब आप काम करोगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, और साथ में एक सेटअप जब बना लो तो उसको पूरा बैक टेस्ट करना पड़ेगा आपको। सेटअप बनाना बड़ी चीज नहीं है, बैक टेस्टिंग बड़ी चीज है। बैक टेस्टिंग कर लोगे
तो उस पर पूरा कन्विक्शन आ जाएगा। और रियल जो चीज होती है वो बैक टेस्टिंग ही होती है मार्केट में। आपका सबसे बड़ा एक ट्रेडर का जो वेपन होता है ना वो बैक टेस्टिंग होता है, क्योंकि सोचो आपके फेवर में कितनी बड़ी चीज है। आप पिछले 10 साल का डेटा भी बैक टेस्ट कर सकते हो और मार्केट से एक ऐसी चीज निकाल सकते हो जो हर बार वर्क कर रही है। हर बार का मतलब आपके फेवर में 30% वर्क कर रही है और हमको उतना ही चाहिए। उतना ही चाहिए। ठीक, इस चीज को अगर समझ गए आप 30% रूल को ना, तो सेटअप तो बना लोगे आप। मैं ठीक आपको है, वो वाला वीडियो देखता हूँ, आप मेरे को आर मल्टीपल एंड हाँ वो मैं वाला। आपको दोनों वीडियो सेंड कर दूंगा, रेस्ट टू रिवॉर्ड का भी और सेटअप के क्रिएशन का भी। ठीक है, दोनों यस ही सर। वीडियोस मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप देख लेना। मैं एक्चुअली चैनल का लिंक आपको सेंड कर दूंगा, या आपको नाम बता दूंगा। जो दोनों में से अंशुमान द्विवेदी नाम है मेरा, इसी नाम से चैनल भी है, आप जाओगे सर्च अच्छा। कर लोगे तो भी मिल जाएगा, क्योंकि उसमें एंड मेरा ही उसमें सबसे पहले आएगा मेरे ख्याल से ऊपर। ठीक है, और नहीं तो मैं आपको लिंक तो सेंड कर ही दूंगा। ठीक है, ये चीज यस है। सर। सर बस मेरे क्वेश्चंस तो, थैंक यू सो मच, मेरे को काफी अच्छा लगा ऑनेस्टली, मेरे मेरे को भी काफी। काफी अच्छा लगा, क्योंकि आपने ऑनेस्टली सारी चीजें पूछी और ऐसा नहीं हुआ कि आपने कहीं भी अपनी गलतियों को छुपाया हो। तो नहीं मैं सबसे सर। पहली जो चीज है ना ट्रेडर के, ट्रेडर बनने की, वो पहले मार्केट क्या है ना, वो पैसा देना ही तब शुरू करती है जब आपको आपकी 80% कमियों को काट देती है वो। यहाँ आने वाला जो ट्रेडर होता है ना उसके साथ ऐसा नहीं। बाकी फील्ड्स में क्या है पता है, बाकी फील्ड्स में आप 30% सही हो रहे हो ना, मतलब 30% आपको पता चल गया, नॉलेज आ गया, ज्ञान आ गया, तो आप काम करना शुरू कर सकते हो। यहाँ आपको 100% आएगा तो ही शुरू होगा। पैसा आना ही तब शुरू होगा जब 100% आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर मार्केट आपकी बहुत सारी गलतियां जो होती है ना, एक एज अ ह्यूमन बाय डिफॉल्ट होती हैं वो गलतियां, वो काटती है धीरे धीरे। जब 80% तक कट जाती है तब पैसा आना शुरू होता है। ठीक है, सर लास्ट क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा पर्सनल बिल्कुल क्वेश्चन है। बिल्कुल। सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क सर, आप फुल टाइम ट्रेडर हो कि आप और कुछ लाइक हाँ साइड में मैं ये फुल इसके। टाइम ट्रेडिंग ही करता हूँ। इवन मैं फंड मैनेजमेंट भी करता हूँ, लेकिन सबका नहीं, एक्चुअल में बहुत ही जो जो क्लोज होते हैं उनका ही। उनका ही कर, ओके, हाँ, जस्ट एक नॉर्मल हाँ क्वेश्चन मैं था। फुल टाइम ही काम करता हूँ मार्केट में, और लगभग 6-7 साल हो गए मेरे को काम करते। ओके, जस्ट दैट मेरे को आई वांटेड टू आस्क यार, मैं आज तक मैं जिससे मिलता हूँ कोई भी ये नहीं बोला मेरे को कि आजकल मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। हाँ आई वांटेड टू मीट समवन लाइक दिस कि आप एक फुल टाइम हो, क्योंकि फुल बिल्कुल। टाइम बोलने वाले बहुत सारे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर अगर इवन कोई। मैंने इस चीज का प्रूफ इसीलिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे आपने बोला कि कोई भी बोलता नहीं है, और जो बोलते हैं ना वो होते नहीं है एक्चुअल में। हाँ, क्योंकि नहीं होते हैं। आप, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना उसमें समझ में आता है कि आप सही में ट्रेडर हो या नहीं हो। आप फुल टाइम काम करते हो या नहीं करते हो। फुल टाइम का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर स्क्रीन पे बैठे हो ना। हम्म। आपका काम अगर वो चीज है ना, ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि 24 घंटे आपके दिमाग में चलेगा, अगर आप उस प्रोफेशन में हो तो। हम्म। और खास करके जब आपका शुरुआती फेज होता है 2-3 साल पहले के 2-3 साल तक, उसमें हम्म। पूरा टाइम चलता रहता है दिमाग में। जब तक आप एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी नहीं बना लेते ना, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल चीज को, हम्म। प्रोसेस को नहीं डिजाइन कर लेते, तब तक वो चीज आपके दिमाग में चलती ही रहेगी कंटिन्यूअसली, अगर आप सही में उस ट्रेडर के माइंडसेट के आदमी हो तो। ठीक है, हम्म। और वही चीज आपको ट्रेडर बनाती है। अब देखो क्या होता है ना कि कई लोग जो बोलते हैं वो होते नहीं है, इसलिए मैंने अपने आप को, जब यूट्यूब पे मैं पहला आया ना, पहली बार आज से लगभग 1 साल पहले मैंने पहला वीडियो डाला था, उसके बाद तो मैंने बंद कर दिया था। टाइम ही नहीं मिलता था इतना। तो भाई टाइम निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि वीडियोस बनाना फिर उसके बाद और सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए पहले जो पहला वीडियो डाला वो ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करने के लिए, इसीलिए पूरी जर्नी दिखाई 5 साल की, हम्म। कि देखो इस तरह से काम होता है। और उसमें भी सिर्फ ऐसा नहीं कि जर्नी दिखाई, उसमें भी मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए, जैसे क्या होता है ना कि आपको प्राइस की तो, आपको स्टॉक की या प्राइस की तो एनालिसिस सब बता देते हैं, टेक्निकल एनालिसिस ऐसे की जाती है, लेकिन हम्म। भैया अपनी एनालिसिस का क्या, ट्रेडर तो मैं बनने वाला हूँ ना। पैसा, हम्म। पैसा कभी भी स्टॉक से नहीं आता, पैसा प्राइस से नहीं आता, पैसा हमसे आता है, हम्म। हमारी साइकोलॉजी से आता है। तो हमको अपने आप को रीड करना पड़ेगा। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कैसे करते हैं, वो बहुत ही कम वीडियो होंगे या शायद नहीं होंगे यूट्यूब पे। हम्म। ठीक है, आप अपने पीएनएल स्टेटमेंट की एनालिसिस कैसे करोगे, वो चीज भी बताई है मैंने उसमें फर्स्ट वीडियो में, ताकि सामने वाला ये समझ पाए कि हाँ जो बता रहा है वो जो, क्योंकि कैमरे के मैं इस साइड बैठा हूं आप उस साइड बैठे हो, कैसे बिल्ड होगा एक ट्रांसपेरेंसी, इसी तरह से हम्म। बिल्ड होगी ना, जब आप ये जानोगे कि हाँ सामने वाला क्या है।
क्या बैकग्राउंड रहा इसका पिछले 5 साल में, इसीलिए उस चीज को दिखाया है। वो भी आप चाहो तो देख सकते हो। उसमें क्या है कि उसमें पीएनएल की एनालिसिस दिखाई है। जैसे आपने अभी 3 साल तक काम किया, 3 साल का पीएनएल आपने कभी उठा के अपना खुद एनालाइज किया क्या? नहीं किया। यही ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को एनालाइज नहीं करते, अपने पीएनएल। आपका पीएनएल क्या है आपको पता है? आपका चार्ट है आपका पीएनएल। जैसे हम एक मार्केट का चार्ट देखते हैं ना, वैसे हमारा चार्ट होता है हमारा पीएनएल। ठीक है, वो हमको दिखाता है कि हम क्या कर रहे हैं रियल में, क्योंकि हमको तो पता है ना कि हमने किन किन फेजेस में क्या क्या पीएनएल जनरेट किया है। उस समय का माइंडसेट हमको इमीडिएटली याद आ जाएगा, वो क्लिक कर जाएगा जैसे ही हम उस दिन को देखेंगे तो। ठीक है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। फिर उसके बाद आप ब्रोकरेज देखो। आप देखोगे तो शुरुआती दिनों में आपकी ब्रोकरेज बहुत हायर लेवल पे होगी, बाद में धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर वो हो रहा है तो अच्छी चीज है, और अगर बीच में कहीं गलती से फिर से हाइक आ गया उस चीज में कि ब्रोकरेज बढ़ गई, तो इसका मतलब फिर आप गलत ट्रैक पे चले गए। ब्रोकरेज कभी नहीं बढ़नी चाहिए आपकी। आपके प्रॉफिट से 10% के अंदर अगर ब्रोकरेज है ओवरऑल प्रॉफिट से, तो ठीक है। 10-12%, 15% तक ठीक है। उससे ऊपर गई तो फिर बहुत दिक्कत आ जाती है। फिर इसका मतलब आप अभी सही ट्रैक पे ही नहीं हो मार्केट में। थोड़ा और इसका मतलब पॉलिश होने की जरूरत है। वो चीजें हैं उसमें, वही चीजें बताई हैं कि कैसे क्या करना है। तो हमारी जो भी बात हो रही थी कि क्या बात हो रही थी हमारी इसके पहले? ये ब्रोकरेज की। ब्रोकरेज की वही बात है कि उसमें आपको ये देखना है कि चार्जेस और ब्रोकरेज जो भी लग रहा है वो हमारा आपने 10-15% से ऊपर नहीं होना पीएनएल चाहिए। को थोड़ा एनालाइज करते जाओ, पीएनएल हाँ, को थोड़ा। पीएनएल को एनालाइज करना जरूरी है अपने एक ट्रेडर के लिए। ठीक है, यस सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा थैंक लगा यू सो मच जुड़ने के लिए यार, क्योंकि मेरा भी आप पहले दूसरे स्टूडेंट नहीं, एक्चुअली कंटेस्टेंट हो। ठीक है। सर आप एक सच्ची सजेशन दूंगा सर, ऑनेस्टली। हाँ हाँ। हम आपसे पूछा था आपकी कंसल्टेंसी के लिए, आपने वो बैच के लिए आपने 2 लाख रुपये दिला है। आई वुड अच्छा, रियली वो वांट, आप थे क्या उसमें? ने पूछा था? मैं अच्छा, मुझे नहीं याद है यार, सॉरी, बट